Hello student, a very warm welcome to you all. It is Yagyesh Pandey before you to teach accountancy of class 12th term 2 related to a very important topic, that is retirement and death of the partner. Students, in the previous classes, in the previous lecture, we have dealt with the concept of debenture, its accounting treatment, and also discuss various important questions related to that. In discussing the questions related to the debenture, we have D, whatever the accounting treatment took place when the company issues the debenture, or whatever the accounting treatments are made by the accountant of the company when these debenture are issued in various terms or in various ways. So discussing all that, we came to know that what the ideal accounting treatment should be made in the books of company, and apart of that, now we are going to deal a very important topic of the term 2, that is retirement of partner. Students, before starting anything, I would like to tell you that what is the concept of retirement and how the retirement took place in the partnership organization. So let us deal first of all what is retirement of partner. Students, when we talk about retirement, it means the separation of a individual who is named as a partner, who is called as a partner, when the company or the firm are separated from their operators, you can say the owners or the member of the company, who are ultimately known as partner. Okay, रिटायरमेंट का मतलब होता है कार्य से विरत होना, अपने कार्य से अलग होना, being separated from the job, or from the workplace who where on which the organization's member, or you can say partner, was working for a long time. हम जहाँ पे बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, वहाँ पे हम अपने काम को जब समाप्त करते हैं, जब अपनी कार्य से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने दायित्वों से विरत होते हैं या मुक्त होते हैं, then it could be said that the partner or the member is taking retirement. यहाँ पे ये बात एकदम क्लियरली मैं डिफाइन कर दूं कि रिटायरमेंट के समय हमारा जो पार्टनर है वो स्वयं की इच्छा से, अपनी मर्जी से फर्म से अलग हो, किसी कारणों से फर्म द्वारा निष्कासित न किया जाए, क्योंकि निष्कासन जो है, टर्मिनेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ रिटायरमेंट. मीन्स व्हेन द पार्टनर or the member of the organization becomes separated by its own wish due to his own desire, then only it could be said that the partner is taking retirement. Okay, so clarifying and continuing this we could say that that being separated from the job due to own wish and desire based on physical, mental, moral or economical issues, or you can say drives, then only it could be said that the partner is taking retirement. जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मेंबर जो है अलग होता है, और उस अलग होने की कंडीशन में जो है एक स्पेसिफिक सिचुएशन हमने आइडेंटिफाई की, दैट इज हिज और हर ओन विश. ठीक है, अपनी खुद की मर्जी से अलग हो, फर्म के अन्य साझेदारों द्वारा या फर्म द्वारा निष्कासित न किया जाए,
तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा वो पार्टनर जो है रिटायरमेंट ले रहा है, फर्म से रिटायर हो रहा है। और इस रिटायरमेंट की जो सिचुएशन हमने बताई, सिचुएशन थी वो ड्राइव्स या वो कारण जो कि हमारे पार्टनर को फिजिकली, मेंटली, मोरली और इकोनॉमिकली उस फर्म में कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट ना कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे मेंबर, हमारे पार्टनर ज्वाइन हुए थे, तो उनके पीछे, ज्वाइन करने के पीछे उनका एक बड़ा मोटिव था, उनका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि हम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहेंगे तो लंबे समय तक हमें फिजिकली, मेंटली, मोरली और इकोनॉमिकली सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन अगर किसी कारण से इनमें से एक भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है और उसे ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में वो सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने काम से, अपने दायित्वों से, अपनी जिम्मेदारियों से, संस्था से हमेशा हमेशा के लिए विरत हो जाता है। और इसी सिचुएशन को, इसी परिस्थिति को हम कहते हैं रिटायरमेंट। ठीक है, जहाँ तक हम बात करें रिटायरमेंट की, इस वर्ड को हमने क्लेरिफाई करने की कोशिश की कि रिटायरमेंट मीन्स बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द जॉब ड्यू टू द ओन विश एंड बेस्ड ऑन फिजिकल, मेंटल, मोरल और इकोनॉमिकल ड्राइव्स। ठीक है, यानी कि अपनी जॉब से, अपने काम से अलग होने की परिस्थिति जब होती है, और ऐसी स्थिति में उस परिस्थिति का कारण होता है हमारी खुद की मर्जी, हमारी खुद की इच्छा, और ये इच्छा आधारित होती है हमारे शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आर्थिक कारणों से, आर्थिक ड्राइव से। तो ऐसी स्थिति में अपने कार्य से विरत होने की इस स्थिति को हम रिटायरमेंट कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम पार्टनर की बात करें तो अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अ मेंबर ऑफ द organization who act as a representative of the firm, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी संस्था में वो एक रिप्रेजेंटेटिव के जैसे काम करता है, एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ऐसे मेंबर को हम उस फर्म का, उस संस्था का पार्टनर कहेंगे। तो अगर किसी संस्था में ऐसा मेंबर जो कि, अब इन दोनों को हम इंटीग्रेट करें तो हमारे अंदर डेफिनेशन, हमारे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की डेफिनेशन निकल के आती है क्या, कि किसी संस्था का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा मेंबर जो कि उस फर्म में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा था, उसका उस जॉब से, उस पर्टिकुलर जो है काम से सेपरेट होना, ठीक है, उस काम से अलग होना अपनी इच्छा के आधार पर, ठीक है, ताकि वो अपनी जो शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आर्थिक ज़रूरतें हैं उनमें से जिसे भी निकट भविष्य में पूरी न कर पाने की उम्मीद करता है उससे अलग हो। तो ऐसी स्थिति में हम, ऐसी स्थिति को हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ, वी कैन से दैट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज a situation wherein the member of the organization, or you can say firm, are separated from the job, from his job, and with his own wish and due to physical, moral, mental और economical drives,
this is a situation of retirement. Means we can say like the retirement is a situation wherein the member of the firm are separated from his or her job with his or her own wish due to physical, moral, mental and economical drives. So hope the concept of retirement is very much clear to you. हमारी रिटायरमेंट क्या होती है, अब और कोई पार्टनर रिटायरमेंट कब लेता है, ये बातें क्लियर होंगी आपको। अब हम बात करते हैं कि जब हमारी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो उसका इम्पैक्ट यानी कि कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट द कंसिक्वेंसेस एंड द रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर। तो जब हम बात करते हैं कंसिक्वेंसेस की या इफेक्ट की और द रिजल्ट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, the consequences may be widely categorized under two categories, where the effect on the firm पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और साथ ही साथ हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। दैट इज इफेक्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो एक एक कर दोनों की बात करते हैं। जब हमारी रिटायरमेंट की बात करें हम अपने फर्म के रिगार्डिंग, तो फर्म के रिगार्डिंग जो कंसिक्वेंसेस होते हैं दैट आर अल्टीमेटली इनिशियली, फर्स्ट वन इज द पार्टनर become free from the duties or the responsibilities assigned to them। ओके, जो भी उन्हें ड्यूटीज दी गई हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उन सारी ड्यूटीज और उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो फ्री हो जाते हैं। एज वेल एज ऑल द राइट्स आर टेकन बैक फ्रॉम देम, ऑल राइट्स are taken back or you can say cancelled from them। Okay, it means you can say like the whatever the rights are assigned to the partners or whatever the rights are given to the partners after retirement, all such rights are taken back from them। Okay, and there is no further relationship take place between firm and the organization, or you can say its member also firm and such partner। ओके, यानी हम अगर बात करें तो एज अ इम्पैक्ट, सबसे पहला इम्पैक्ट और सबसे प्राइमरी इम्पैक्ट पड़ता है कि जो भी हमारा रिटायरिंग पार्टनर है वो अपनी समस्त दायित्वों से, अपनी समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ हमारा जो भी पार्टनर है वो अपने समस्त अधिकारों से मुक्त हो जाता है, यानी उसके समस्त अधिकार निरस्त कर दिए जाते हैं, कैंसिल कर दिए जाते हैं। और इसके बाद जो है हमारे पार्टनर और हमारी फर्म के बीच जो भी समझौते थे, जो भी संबंध थे, वो पूरी तरीके से निरस्त हो जाते हैं, पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, दीज आर द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ऑन द फर्म, और यू कैन से एज वेल एज ऑन द पार्टनर ऑल्सो इन द थ्योरेटिकल मैनर। ठीक है, आदर्श रूप में ये तीन फंडामेंटल जो है कॉन्सिक्वेंस बनता है। और उसके अलावा जो है हम अगर और बातें करें तो हमारा पार्टनर रिटायरमेंट के बाद जो है फर्म की ओर से कोई डीलिंग नहीं कर सकता, फर्म की ओर से जो है कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, फर्म की ओर से कोई एसेट्स नहीं खरीद सकता, ना ही किसी लायबिलिटी का निपटारा कर सकता है। और वो तमाम अधिकार और तमाम दायित्व जिनकी बात हम लोगों ने पहले और दूसरे पॉइंट में की है, वो सारी चीज़ें निरस्त हो जाती हैं, उन सारी चीज़ों से उसे मुक्त कर दिया जाता है।
तो ये चीज़ें जो है हमारे पार्टनर एज वेल एज हमारी फर्म दोनों पे जो है इम्पैक्ट डालता है। अब हम बात करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ द रिटायरमेंट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हम यहाँ बात करेंगे कि हमारे पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से हमारे पार्टनर की जो रिटायरमेंट होती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इम्पैक्ट करती है। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। So when we talk about the impact on books of account, the very first impact is the ascertainment of, or you can say calculation of, ascertainment, or you can say calculation of new ratio as well as gaining ratio also। ठीक है, न्यू रेशियो की भी बात करेंगे हम आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, एंड एज वेल एज गेनिंग रेशियो की भी बात करेंगे। और इसके अलावा जब हमारा पार्टनर रिटायरमेंट होता है लेता है, यानी जब रिटायर होता है, तो वो सारी चीज़ें जो भी फर्म उसे ओबलाइज करती है उनकी कैलकुलेशन होती है, उसको जो है पे किया जाता है टू द रिटायरमेंट पार्टनर। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट दी जाती है। तो अल्टीमेटली दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तीसरा इम्पैक्ट पड़ेगा प्रिपरेशन ऑफ फ्रेश बुक्स ऑफ अकाउंट, वेयर यू कैन से that is the first one is you can say partners capital account as well as partners current account as well as you can say the balance sheet of the new firm, it is also considered, and thus these three major impact took place when the partner take the retirement। ठीक है, हमने जो है अगर पार्टनर के फर्म रिटायरमेंट की बात की और उसके इम्पैक्ट की बात की ऑन द रिटायरमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे तीन मेजर इम्पैक्ट पड़ते हैं। सबसे पहला और सबसे मेजर इम्पैक्ट है दैट इज एसर्टेनमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, यानी कि पार्टनर के जाने के बाद, पार्टनर की रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, और न्यू रेशियो में गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो के साथ साथ जो पार्टनर हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट, क्या उनके रेशियो में कोई इंक्रीजमेंट हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो ये जो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो की बात होगी। ठीक है, उसके लिए मैं गेनिंग रेशियो के लिए आपको फॉर्मूला बता दूं दैट गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर। ओके, for whom we are talking about the calculation of gaining ratio, this formula will be implemented। ठीक है, गेनिंग रेशियो यानी कि पार्टनर की रिटायरमेंट, किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद बाकी पार्टनर की लाभ के अनुपात में कितनी वृद्धि हुई है, इसी वृद्धि के मान को हम कहते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात। इट मीन्स द गेनिंग रेशियो कुड बी डिफाइंड एज अ increment of the profit sharing ratio after the retirement or the separation of the old partner due to any reason। ओके, सो इसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, इसकी बात करेंगे हम लोग। इसके साथ साथ हम अगर बात करें कि व्हाट आर द मेजर पेमेंट दैट आर कंसीडर्ड ऑन द केस ऑफ रिटायरमेंट, देन द मेजर पेमेंट आर अल्टीमेटली, सबसे पहले तो हम उस कैपिटल की पेमेंट करते हैं जो हमारे पार्टनर ने दी है, पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर ने जो पूंजी दी है उस पूंजी को उसे वापस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अदर देन कैपिटल ओब्लिगेशन भी प्रोवाइड करते हैं।
क्या अगर हमारी फर्म ने अदर देन प्रॉफिट जो है कोई वादा किया है, जैसे आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, एटसेट्रा, so these are the capital obligation, means the payment other than the profit, means the payment other than the profit. ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें और बाकी की पेमेंट की, तो अल्टीमेटली इन दो चीज़ों के अलावा अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो उस लोन की सेटलमेंट करेंगे, सेटलमेंट ऑफ लोन। हमारे पार्टनर ने हमारी फर्म से जो लोन लिया है या हमारे पार्टनर ने फर्म को जो भी लोन दिया है उसकी सेटलमेंट होगी, ठीक है, उसकी पेमेंट क्लियर होगी। इसके अलावा हमारे फर्म में जो भी गुडविल है, फर्म की रिटायरमेंट के टाइम जो गुडविल है उसमें उसका जो भी शेयर है वो मिलेगा, शेयर इन गुडविल एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ओके। इसके अलावा हमारे पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम फर्म में जो भी इनटेंजिबल असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनमें उसका शेयर मिलेगा, शेयर इन इनटेंजिबल आइटम्स एंड apart of that the partner will also entitled to share in expected profit and loss for the working period, यानी जितने समय के लिए उसने काम किया है उस समय के लिए उसका क्या फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस लॉस या प्रॉफिट में फर्म में जो है उसका हिस्सा क्या होगा वो हिस्सा भी उसे प्रोवाइड किया जाएगा। और अदर देन दैट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी जाएगी, दैट इज शेयर इन इनटेंजिबल असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है। ये 6-7 मेजर चीज़ें जो है हमारे पार्टनर को प्रोवाइड कराई जाती हैं वाइल टेकिंग द रिटायरमेंट, यानी जब हमारा पार्टनर रिटायरमेंट लेता है और उसके बाद जो है उसे ये सारी पेमेंट की जाती हैं, ये सारी पेमेंट प्रोवाइड कराई जाती हैं फ्रॉम द साइड ऑफ फर्म। ओके। तो होप दीज इफेक्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। हमने बताया आपको कि जब रिटायरमेंट होती है तो उसके क्या कंसिक्वेंस होते हैं, क्या रिजल्ट होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, और इफेक्ट को हमने दोनों कैटेगरीज में बांट के वो समझाया आपको, दैट मीन्स इफेक्ट ऑन द फर्म और इफेक्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ हमने आपको फर्म में बताया कि जब रिटायरमेंट होती है तो रिटायरमेंट के बाद हमारे पार्टनर को उसकी सारी ड्यूटीज़ से, सारी अथॉरिटीज़ से जो है मुक्त कर दिया जाता है, और उसके साथ साथ फर्म का पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है, जो एग्रीमेंट है, वो भी वायलेट हो जाता है, वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं तो अल्टीमेटली जो बुक्स ऑफ अकाउंट के इम्पैक्ट हैं उनमें 3 बातें हमने की, एज सर्टेनमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, यानी रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद न्यू रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होती है और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होती है। यहाँ गेनिंग रेशियो के लिए हमने फॉर्मूला बताया आपको, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जब पेमेंट होती है, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, उसमें क्या क्या पेमेंट दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई आपको, पार्टनर्स कैपिटल्स ऑब्लिगेशन, सेटलमेंट ऑफ लोन, शेयर इन गुडविल एज एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट, शेयर इन इंटेंजिबल आइटम्स और शेयर इन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ वर्किंग पीरियड। इसके साथ ही साथ शेयर इन इंटेंजिबल असेट्स एंड लायबिलिटीज़, और इसके अलावा आपको रिटायरमेंट की डेट पे रिवैल्यूएशन होता है तो उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें भी शेयर मिलता है, मींस शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। ओके।
तो ये सारी पेमेंट जो है आपके रिटायरिंग पार्टनर को दी जाती है, और उसके बाद जो है उस पार्टनर को छोड़ करके जो फ्रेश बुक्स ऑफ अकाउंट होती हैं, लाइक पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं। होप द एंटायर कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर एंड द इम्पैक्ट ऑफ द पार्टनर इज क्लियरली डिस्कस्ड बिफोर यू। और इसके साथ ही जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।